Hello everyone, welcome to our YouTube channel Accountancy Department, Joshi Pedikar College. Today in this auspicious day, we are starting with one of the series of internal reconstruction solved lectures. Okay, let us start with the sums. Okay, as you can see in the right side corner, the question is available over here. The balance sheet of Dirty Limited are as at 31st March 2018 appeared as follows. Some balance sheet has been given and some reconstructions scheme is provided over here. First one is equity shares are to be reduced to 3 rupees. Let us start to continue. We start with the schemes first. Let us discuss the scheme. That is equity shares has been reduced to 3 rupees. That is 10 rupees जो शेयर है उसको reduce करके कितने में बना दिया, उसको 3 rupees में बना दिया, यानी कि 7 rupees का जो reduction है, that reduction is my profit for my company. Next is 12%, 9% preference share capital. Preference shareholders have agreed to accept 12% debentures at rupees 1,20,000 in full satisfaction. Like for example, company के liability side में देखोगे अगर आप, तो you can see the 9% debentures are 9% preference shares are 2 lakh rupees, but they have satisfied with 1,20,000. The reduced amount of that liability is my profit by my company, which is rupees 80,000. 80,000 उन्होंने less लिया है. Next is interest due on both the amount of interest are due but paid on the discounted. Some discount मुझे मिला, वो discount मेरे लिए क्या है, मेरे company के लिए profit है. Next is some stock and liabilities, they are undervalued, or you can say they are reduced with the liability. That is, first one is current liabilities are reduced with 40% of the current liabilities are reduced to 75% and the remaining 60% has been reduced to 80%. Okay, next one is 20% of the stock has also been reduced and some amount has been sold. Next is goodwill and preliminary expenses and other some assets are written off, and then RDD is provided over here and appreciation of some assets are provided. Next is cost of reconstruction are also be provided. We have to pay it out. Let us start with the first point, that is equity shares are to be reduced to rupees 3. Okay, 3 rupees per share. Now let us as it is a reduced amount, we have to show in the capital reduction account. जितना reduce हो रहा है उतना ही दिखाएंगे. कितना reduce हो रहा है, 10 rupees का था, but it has been reduced to 3 rupees. यानी कि कितने से reduce हुआ, 7 rupees. तो by equity share capital rupees 7. रुपीज 7 है. कितना रुपीज है, कितना शेयर्स कितना था, 60,000 शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर. 60,000 इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो कितना रिड्यूस हुआ है, 4,20,000 रुपीज रिड्यूस कर दिया है. नेक्स्ट अमाउंट इज प्रेफरेंशियल कैपिटल आर टू बी preferential holders are agreed with 12% debentures at rupees 1,20,000. एक्चुअल अमाउंट कितना था प्रेफरेंस शेयर्स में, चेक करो, लायबिलिटी साइड में 2 लाख रुपीज which has been reduced to 1,20,000. 1,20,000 यानी कि remaining amount is my reduced amount which has to show in the credit side of my capital reduction account. The amount will be by preference share capital which is equal to 80,000. Is that clear right now? Chalo. Next point is interest due on unsecured loans has been discounted with 40%. 40% discount है. कितना देखो, liability side में देखो, चेक करो, interest on accrued with debentures दिया है. Next last one is interest accrued on unsecured loans which is discounted with 40%. 30,000 का जो शेयर है, 30,000 का जो अमाउंट है, 30,000 में 40% मेरे को डिस्काउंट मिल गया. जो बचा हुआ डिस्काउंट कितना है, वो डिस्काउंट इज माय लायबिलिटी, जो मुझे कम पे करना पड़ेगा. डिस्काउंट हम लोगों को यानी कि पे नहीं करना चाहिए, वो पे नहीं करूंगा. दैट विल बी माय रिडक्शन बाय इंटरेस्ट ऑन अनसेक्योर्ड लायबिलिटी. ठीक है, अनसेक्योर्ड लायबिलिटी और अनसेक्योर्ड लोन्स which is equal to 30%, or you can say 40% of the rupees 30,000 which is equal to 12,000. और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मेरे लायबिलिटी में चले जाएगा. आई हैव टू पे देम. ठीक है, आई हैव टू पे देम. ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना, चेक करो. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज समथिंग अराउंड 44,000. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स is rupees 44,000 but 50% of debt has been given discount. ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 50%. 50% है तो हाफ कर दो. 44,000 का 50% इज इक्वल टू 22,000. ठीक है,
कुछ नहीं किया बेटा, 44,000 मल्टीप्लाई बाय 50% करोगे तो 22,000 आएगा। नेक्स्ट वन वी हैव टू सी इज नेक्स्ट वन, ये थोड़ा डिस्काउंट, ये जो डिसलाइबिलिटी वाला है इसको थोड़ा मैं वर्किंग नोट कर लेता हूँ, उसमें चेक करना। ठीक है, वर्किंग नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, आई एम प्रोवाइडिंग इन द वर्किंग नोट ओवर हियर, वर्किंग नोट फॉर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का अमाउंट कितना है देखो, 1,66,000 है, चेक करो 1,66,000 है। उस 1,66,000 में से 40,000 40% और 60% के हिसाब से बाइफर्केशन किया, तो 40% ऑफ 1,66,000 इज इक्वल टू कितना, 1,66,000 का है 66,400 एंड देन लास्ट वन विल बी 600 and 99,600 इसका कितने से कन्वर्ट कर दिया है, जो 100% था उसको कन्वर्ट कर दिया कितने, 75% में, यानी कि कितने से कम हुआ, 25% कम हुआ है ना, 100 में से 75 कर दिया है, 100 से 75 कर दिया, यानी कि कितने परसेंट से, 25% से कम हुआ है। एंड सेकंड वन इज 100 से 80 में कन्वर्ट कर दिया, कितना परसेंट, 20% से कम हुआ। इसका कितना होगा, इसका चेक करो कितना होगा, 25% इज 25% कितना होगा इसका, चेक करो 16,600 होगा इसका, 25% इज इक्वल टू 16,600 एंड देन इट विल बी अराउंड 19,920, अमाउंट इज 19,920। अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 515 10 10 16 36,520, इतने से अमाउंट रिड्यूस हो चुका है। दिस रिडक्शन अमाउंट इज वी हैव टू शो इन द कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो वहां पर अमाउंट देखो बाय लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, क्यों, क्योंकि कंपनी को मैंने कम पे करना है, कितना है 36,520। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करो। नेक्स्ट पॉइंट इज 20% ऑफ द स्टॉक इज एब्सोल्यूट एंड 40% बुक वैल्यू, यानी कि जो कम किया है, कम दिखा है ना 40%, 20% का जो कम हुआ उसको कितने में बेचा मैंने, 40% का बुक वैल्यू में बेचा, जो बचा वो 60% मेरे लिए क्या है, मेरे लिए लॉस है ना वो, तो मेरे को क्या है कि मेरे लिए वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि एसेट है, एसेट का वैल्यू गिर रहा है, यानी कि मेरे लिए लॉस हो गया, तो कितना लॉस है वो चेक करेंगे। चलो नेक्स्ट इज वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज ऑफ स्टॉक। स्टॉक का देख लेंगे, स्टॉक अमाउंट कितना है, देखो अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2,10,000 रुपीज, 2,10,000 रुपीज। इसका चेक करो कितना परसेंट है, 20% कितना हुआ इसका, 20% इज इक्वल टू 42,000 एंड 80% कितना होगा, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 80% का करो फटाफट से इसका, 1,68,000 राइट, 1,68,000। ठीक है, 1,68,000 में से हम लोगों को ये हटाना, अभी मत करना, वो लास्ट में बताऊंगा मैं कैसे करना है उसको। ठीक है, 40% का हम लोगों को कितने में बेच दिया, उसको कितने में बेचा है उसको, एज एन 40% ऑफ दैट स्टॉक, 40% ऑफ द बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू था उसके 40% में बेचा है मैंने, उसका 40% में मैंने कितने में बेचा उसको, जल्दी से फटाफट बताओ कितना, 16,600, 800 में से 16,800 में मैंने सेल किया है, 60,800 मैंने सेल किया है, कितना लेस हुआ, कॉस्ट कितना था 42,000, सेल कितने में किया मैंने 16,800, तो डिफरेंस अमाउंट इज माय 25,200, डिफरेंस अमाउंट इज इक्वल टू 25,200। इतने से मैंने वैल्यू डाउन कर दिया अपने स्टॉक का, वैल्यू डाउन किया है, तो वो डाउन वैल्यू कहाँ दिखाना पड़ेगा मेरे को, सॉरी ये तो लाइबिलिटी साइड नहीं है, ये एसेट है, गिर रहा है, तो फिर डेबिट साइड में आएगा, टू स्टॉक इज इक्वल टू 25,200। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थोड़ा राइट ऑफ करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, एंड दी करंट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आपको वो भी आपको राइट ऑफ करना है, वी हैव टू शो ओवर हियर। नेक्स्ट इज फर्स्ट वन इज गुडविल। टू गुडविल कितना अमाउंट है देखो, चेक करो, 1,67,000, 1,67,000। नेक्स्ट वन इज गुडविल के बाद क्या राइट ऑफ करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है, कितना अमाउंट है देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, 25,000। एज यू कैन सी इन द लेफ्ट साइड राइट साइड आपको सब क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद देखो पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज एन डेबिट बैलेंस, अमाउंट रुपीज कितना है, 3,53,000, 53,000, 3,53,000, इट इज माय
P&L account debit balance. Next is we have provided some RDD and value of fixed asset should be appreciated. पहले तो हम लोगों को RDD कितना है, RDD हम लोगों को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी मेरे लिए लॉस हो जाएगा. कितना दिखाऊंगा, दिस अमाउंट कितना होगा, ये अमाउंट कितना है RDD का 33,000. नाउ वी हैव टू अप्रिशिएट सम अमाउंट, अप्रिशिएट करना है, अप्रिसिएशन. तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू बढ़ रहा है, हम लोगों का वैल्यू जो है इंक्रीज हो रहा है. वैल्यू इंक्रीज हो रहा है यानी कि एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा, मेरे लिए प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट होगा कहाँ होगा, अपने क्रेडिट साइड में. तो बाय, पहला क्या है, पहला अमाउंट क्या है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग. कितना देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख का 10% कितना होगा, 30,000. 30,000 एप्रिसिएशन होके बढ़ गया है, वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट अमाउंट इज बाय प्लांट एंड मशीनरी. कितना है, 2,15,000 है. 2,15,000 का हम लोगों को एड अप करो, 10% कितना होगा, 21,500 विच इज इक्वल टू 21,500. तो अभी दोनों का टोटल करो, सम अप वी हैव टू बैलेंसिंग फिगर. You have to do this balancing figure which is equal to 6 lakh, which is equal to add up करके हम लोगों का अमाउंट आएगा, हम लोगों को कितना आएगा, 6,22,520. 6,22,020. 6,22,020. दोनों साइड वही लिख देना क्योंकि दोनों का बैलेंस बड़ा है. आपको डेबिट बैलेंस आएगा, कितना आएगा देखो, चेक करो ये साइड में, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, 2,000 रुपीज. चेक करो, माइनस करके आपको आंसर आएगा 2,000 रुपीज. दिस रिजर्व्स हैव टू बी शोड इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ माय इन माय लायबिलिटी साइड. ठीक है, लायबिलिटी साइड आपको दिखाना पड़ेगा एज एन रिजर्व्स एंड सरप्लस में. नेक्स्ट वी हैव टू कंटिन्यू विद द बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस हम लोग को चेक करना पड़ेगा. बाय बैंक, टू बैंक्स हम लोगों को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. चेक करो पहले, बैलेंस पैसे दिया हुआ है देखो, राइट साइड में 45,000 दिया हुआ है. नाउ मैंने सेल किया था कुछ अमाउंट, कितना स्टॉक सेल किया था, कितना सेल किया था, 1,600. तो टू स्टॉक कितना हो जाएगा, टू स्टॉक कितना हो गया, कितने से बेचा मैंने, 16,800. इतना मैंने सेल किया है, इतना मैंने सेल किया है. नेक्स्ट we have to make some payment. We have made some payment, that is interest on debentures, interest on unsecured liabilities, दोनों भी unsecured liability. Next is by interest on debentures. कितना है देखो, unsecured liabilities का debentures, ये मैंने डिस्काउंटेड है. टोटल अमाउंट इज 30,000. 30,000 में से 12,000 मैंने डिडक्ट कर दिया है. अमाउंट रिमेनिंग इज माई which I have paid, that is 18,000 I have paid to my company. ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में देखो कितना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 44,000 था, उसमें से मैंने 22,000 पे कर दिया, तो डिस्काउंट दे दिया. रिमेनिंग अमाउंट इज माई 22,000. ठीक है, ये अमाउंट मेरा 22,000 है. और भी देखो, लास्ट अमाउंट इज माई रिडक्शन एक्सपेंसेस, जो लास्ट वाला पॉइंट है, रिडक्शन एक्सपेंसेस विच इज इक्वल टू 16,820 विच इज इक्वल टू बाय कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विच इज इक्वल टू 16,820. ठीक है, 16,820. नाउ जल्द फटाफट से इसको ये कर लो, बैलेंसिंग फिगर करो, फटाफट बैलेंसिंग करो इसको. अमाउंट इज इक्वल टू, ये कितना होगा, टोटल अमाउंट आएगा 61,800. माइनस करो फटाफट से, आएगा आंसर कितना आएगा, चेक करो फटाफट से, इसका आंसर चेक करो कितना, 61,800 में से माइनस कर दे तो इसका अमाउंट आएगा आपके 4,980 आएगा आंसर. दिस इज माय बैलेंस ब्रॉट कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ऑफ माय बैंक अकाउंट. नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में फर्स्ट अमाउंट विल बी माय इक्विटी एंड लायबिलिटीज. फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी. इस इक्विटी में लायबिलिटी में फर्स्ट अमाउंट अपना क्या आएगा, इक्विटी फंड और कैसे, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड है फर्स्ट. इसमें क्या आएगा, शेयर कैपिटल. उसमें फर्स्ट आएगा शेयर कैपिटल आएगा. शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स लगा तो भी कोई इश्यू नहीं है. अब शेयर कैपिटल में भी हम लोगों को कितना अमाउंट दिखाना पड़ेगा, वो दिखाना है हम लोगों को. शेयर कैपिटल कितना अमाउंट है देखो, शेयर कैपिटल में फर्स्ट है 60,000. इक्विटी शेयर्स
60,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 ईच। 3 ईच यानी कि कितना हो गया ये 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 1,80,000। 1,80,000 इज माई शेयर्स। ये अमाउंट मेरे को यहाँ दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट वर्किंग नोट। लेकिन नेक्स्ट टर्न इज रिजर्व्स। चेक करो रिजर्व का कितना है, कैपिटल रिजर्व जो मेरे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से निकला है, कैपिटल रिजर्व विच इज इक्वल टू कितना कितना चेक करो कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है 2,000 रुपीज। दिस 2,000 रुपीज हैव टू बी शोन ओवर हियर। अमाउंट सेकंड अमाउंट इज 2,000 रुपीज शोन ओवर हियर। ठीक है, ये लिख के हो गया। अभी हम लोगों को नेक्स्ट कंटिन्यू करना है बाय सेकंड वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में फर्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है चेक करो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, वर्किंग नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लेट अस चेक दिस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फर्स्ट वन इज 12% डिबेंचर्स which has been issued to the preference shareholders। 12% डिबेंचर्स कितना इशू किया मैंने 1,20,000 इशू किया है। 1,20,000 इशू किया है। उसके बाद 1,20,000 उसके बाद पहले से मेरे पास कुछ डिबेंचर्स पड़े थे। चेक करो पहले से डिबेंचर्स कितने पड़े थे 11% डिबेंचर्स पहले से ही थे। डिबेंचर्स पहले से ही थे। ठीक है, 1 लाख कितने से पहले चेक करो। पहले से हम लोगों के पास पहले से हमारे पास कितने पड़े थे चेक करो 4 लाख रुपीज पहले से ही पड़े। 4 लाख रुपीज पहले से ही है। ठीक है, 4 लाख रुपीज हमारे पास पहले से ही है। नेक्स्ट वी हैव तीन गिवन दैट इज अदर लायबिलिटीज। क्या होगा देखो अदर लायबिलिटीज क्या है अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स कितना है देखो चेक करो। अनसिक्योर्ड लोन्स कितना है 2,60,000 जिसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 7,80,000 आई गेस 7,80,000 यस 7,80,000 which is equal to my third point that is long term liabilities is equal to 7,80,000। now अभी देख चेक करो नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में चेक करो कितना हम लोगों ने यहाँ पर ही बनाया था, एक ये बना दिया था करंट लायबिलिटीज का। यहाँ चेक करो यहाँ हम लोगों ने अभी करंट लायबिलिटी का बनाया था। टोटल अमाउंट वाज 1,66,000। उसमें से 36,520 माइनस कर दो कितना आएगा चेक करो 1,29,480 1,29,480 आएगा। चेक करो 1,29,480 करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अमाउंट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट कितना है ये अमाउंट इज 1,29,480। चेक करो कैसे है ये 1,66,000 पूरा अमाउंट है। उसमें से मैंने कुछ रिड्यूस कर दिया है। रिड्यूस कितना किया था 36,520 एज पर माय स्कीम। थर्ड वाला जो पॉइंट था सॉरी सेकंड लास्ट का जो पॉइंट था हम लोगों ने लायबिलिटी वाला वो वाले हिसाब से। नेक्स्ट उसके बाद देखो उसके बाद कुछ और करना है क्या हम लोगों ने और कुछ लायबिलिटी है क्या और कोई भी लायबिलिटी नहीं है। एड अप कर दो सारी लायबिलिटीज को एड अप कर दो कितना आएगा 10,91,480। ठीक है 10,91,480। ठीक है, अब आपको ऐड करना है लायबिलिटी साइड को कर लिया है। नाउ वी हैव टू गो विद द एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड दिस इज माय टोटल। नाउ वी हैव टू गो विद द एसेट साइड। ठीक है, एसेट वन फर्स्ट वन हम लोगों को क्या करना है फर्स्ट वन इज एसेट्स में फर्स्ट हम लोगों का आएगा नॉन करंट एसेट। A1 is non current asset। उस नॉन करंट एसेट में फर्स्ट वन आएगा आपका फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में फर्स्ट वन वाला आपका टैंजिबल के बाद आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटेंजिबल तो आएगा नहीं क्योंकि सब हम लोग ने राइट ऑफ कर दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। टैंजिबल एसेट में देखो चेक करो दो हम लोगों को एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन हुआ है। नॉन टैंजिबल एसेट में हम लोग को कुछ हम लोगों को ये हुआ है एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन अप्रिसिएशन हुआ है। चेक करो उसको अप्रिसिएशन को लिखना पड़ेगा।
लाइबिलिटीज को टैंजिबल को एक्सेप्ट कर लो, टैंजिबल एसेट, फिक्स एसेट में फर्स्ट वन इज प्लांट एंड मशीनरी, फर्स्ट वन इज प्लांट एंड बिल्डिंग, सेकंड वन इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड बिल्डिंग का कितना हुआ था देखो, 30,000 ऐड अप करना है तो 3 लाख प्लस 30,000 है 3,30,000, अमाउंट इज इक्वल टू 3,30,000। नेक्स्ट वाज इज 2,15,000 प्लस 21,500, 2,15,000 प्लस 21,500 इज इक्वल टू 2,36,500, 2,36,500, राइट। ऐड करो दोनों को, कितना होगा, इसका अमाउंट कितना आएगा चेक करो, इसका अमाउंट आएगा 5,66,500, 5,66,500। ये अमाउंट कहाँ डाल दूंगा, अपने टैंजिबल में, कहाँ डालूंगा, 5,66,500, जिसमें वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। और भी कुछ हम लोगों के पास एसेट है क्या, चेक करो, एसेट्स है ना बेटा, है ना, एसेट्स है, चेक करो कौन से है एसेट्स, करंट एसेट्स, ये शिवाजी का नंबर है क्या, 7977445777। ठीक है। लेट अस कंटिन्यू विद द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में पहला अमाउंट हम लोगों को क्या करना है, करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, फर्स्ट इज इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज हम लोग का स्टॉक, इन्वेंट्रीज है, उसके बाद फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में फर्स्ट वन हम लोगों ने स्टॉक का देखेंगे अभी वापस एक बार, स्टॉक का लेट अस चेक, स्टॉक इज गिवन, इन्वेंट्री इज प्रोवाइडेड हियर 2,10,000 रुपीज, उसमें से हम लोगों ने 20% ऑब्सोलीट हुआ था, 2,20,000 माइनस 42,000 विच इज इक्वल टू 1,68,000, विच इज इक्वल टू 1,68,000 ओवर हियर, 68,000। नेक्स्ट अमाउंट इज इन्वेंट्री के बाद चेक करो और कौन सा हम लोगों को, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन में दिया था डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना देखो, डेटर्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा, आरडीडी माइनस करना पड़ेगा, आरडीडी माइनस कर दो, डेटर्स कितना दिया हम लोगों को क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हम लोगों ने डेटर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को डेटर्स दिया हुआ है 3,10,000 माइनस आरडीडी 33,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2,77,000 माइन आएगा, 2,77,000। नेक्स्ट अमाउंट इज कैश इक्विवेलेंट, जो हम लोग को बैलेंस ये वाला आया था, ये वाला आया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। थर्ड वन इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 4,980। चेक करो और कुछ बचा है क्या हमारे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन में और कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, लास्ट में बस लिख देना अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट एसेट्स और अदर करंट जो वे निल है, जो कि निल है। आफ्टर दिस करंट एसेट्स वी विल बी गेटिंग दिस rent investment, that is 75,000, and once adding up all these three, all this asset will be getting the amount as in 10,91,480. So over here we have completed the entire sum, ठीक है। ऐसे दो चार सम्स आएंगे, you will be provided, just follow our instructions। अगर डाउट्स है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक भेजा है, उसमें ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे लिंक्स आपको उसमें मिल जाएंगे, ऑल द लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड ओवर देयर, एंड द एंटायर topics and entire syllabus over here, syllabus and the question, even the question is provided over there. Kindly join that telegram link and even subscribe our channel for more videos, and just like, share and subscribe, and each and every students को पहुंचना चाहिए, सबको शेयर करना, अपने contacts में सबको शेयर कर देना, each and every students should get benefited with this, ठीक है। Thank you and have a nice day.